पहुंच गए हैं। ये कुट्टी कानम व्यू पॉइंट हिल टॉप पे। तो अगर मैं कहूँ कि मैंने आपको बोला था राइट, सो लोग बोलते हैं हिल स्टेशन जाना है, हिल स्टेशन जाना है, तो मुझे तो समझ में आ गया भाई हिल स्टेशन पे जाते क्यों। हेलो गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। टुडे मॉर्निंग we are going to a place called Kuttikanam, which is in Idukki district. So that's about 4.5 hours from Trivandrum. So we are going to ride all the way there. Now, like I always do, I will definitely capture good, what do you say, the scenic routes along the way, and probably start the video with that. May not post the entire 4 hours, but I'll try and see if I can put a hyperlapse or a time lapse video so that you can actually see the entire path. But then trust me, it's really a scenic way wherever you travel in Kerala. So this one here that I'm talking today about is a hill station, and I'm told that if you have seen the Ponmudi video of mine, it's a hill station where you'll be able to see the clouds, the mist and all that. And from Kuttikanam, I think they told me that I would even be able to see the great Sabarimala temple, a part of Sabarimala temple from the top of that hill. So we have embarked on a journey. So I hope you will like this video. I will not try to make this elaborate, but I'll try to keep it as simple as possible so that you guys do not have to stick to the scene for a long time, but have fun. The shortest video that whatever I can capture. And I'm told that there are 3-4 places I can visit. One is the scenic mountain ride, hill ride that is, and the other one is the hill station, the view from the hill, and then there is a waterfall somewhere close by. Let me see if I locate it. So I started at 9 o'clock, so approximately I would reach with lunch, with breakfast break and all that, probably by 11:30. So I'll see you soon. Stay tuned. Hey guys, so this is on the way to Kuttikanam. I just spotted this beautiful place. I thought I would stop and show this to you as well. So this is on the way to Kuttikanam. We are about an hour or so away from the place right now, and this is the place where you see these nice backwaters. I guess this is that is flowing behind me. Then you see the same. It goes like this, and look at the view.
So this is not a tourist, kind of attraction that they built. This is all natural, guys, right? So this is all natural, right? So here people actually commute by this bridge. They use it to get from one side to another side, and there is a whole village on the other side and the town here, right? So there's my bike. So see, this is like beautiful, right? So this is like how it is, the Kerala is, you see. So I'm going to keep going, but I don't know how many times would I be stopping on the way, because you see it's like breathtaking. You can't just resist leaving all these on the way when you're crossing them. And it's not that every day you travel here to see these, but then whenever you're crossing them, I can't just avoid and keep going. So stay with me. I see something else and I'll definitely show you, right? Okay, so I'm going to be completely honest with you today. I think I deciphered the fact why people keep saying you need to visit a hill station, you need to visit a hill station, right? So now, why am I saying that is because I am, for last 1 hour, my map says I will reach there in 1 hour, but I don't think I will be there in 1 hour, because every turn, every place, I feel like I need to stop and capture this. Okay, so let me show you what I'm talking about. You see behind me? You see that? So I still haven't reached, right? I still haven't reached to the top, and I'm just on my way there. And you see all the greenery? You see the roads? You see this? So, I mean, I'm at loss of words to explain all this. Look at that beauty. मतलब आप अगर देखोगे ना, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है इसको कैसे एक्सप्लेन करूं. पता नहीं मैं कितना कैप्चर कर पा रहा हूं, लेकिन मेरी पूरी कोशिश है कि आपको ये एहसास हो कि भाई ये हिल स्टेशन वाली बात जब लोग करते हैं तो क्यों करते हैं, मैं इसीलिए करते हैं. देखिए ना, अब चलिए हम ऊपर जाके देखते हैं कि भाई अगर यहाँ से इतना सुंदर है तो ऊपर कितना सुंदर रहेगा, है ना. तो वैसे तो मुझे नहीं लगता मैं अभी कोई 5-10 मिनट में ऊपर पहुँच जाऊँगा. या अभी भी 1 घंटा बोल रहे हैं, तो 1 घंटा बोल के 1.5 घंटा हो गया है इसको. तो मैं 5-6 जगह रुक गया हूँ. मुझे समझ में नहीं आता मैं आगे बढ़ूँ, इधर ही रुक जाऊँ, क्या ये सुंदर है वो सुंदर है, पता नहीं करूँ क्या. लेकिन चलो आगे भी तो बढ़ना है ना. तो प्लीज़ स्टे विथ मी. Again on the way to the hilltop. There's a guy having fun with me. I don't know if that is safe, but I guess he has been doing it for a very long time. Yeah, we're still on the way. तो हम लोग पहुंच गए हैं ये कुट्टी कानम व्यू पॉइंट हिल टॉप पे. तो अगर मैं कहूँ कि मैंने आपको बोला था, राइट, सो लोग बोलते हैं हिल स्टेशन जाना है, हिल स्टेशन जाना है, तो मुझे तो समझ में आ गया भाई हिल स्टेशन पे जाते क्यों हैं. एक तो सर इतनी शांति है यहाँ पे, सिर्फ वो चिड़िया और पंछियों की आवाज़ ना, जो उसके अलावा यहाँ पर कोई और आवाज़ है नहीं. शायद मेरी आवाज़ होगी. और उसके बाद एंड सेकंड चीज़ ये है कि ये ऊपर आके जब आप रेस्ट करोगे ना, तो आई एम श्योर आप बिल्कुल ही ठीक ठाक हो जाओगे. मतलब कोई डिप्रेशन, कोई टेंशन ऐसा कुछ होगा तो
शायद सब क्लियर हो जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि ऑन द वे जो रास्ते से आप आओगे ना कोई भी हिल स्टेशन जाने के लिए, वो जो घाटी वाले रोड, उसी में आधा ठीक हो जाएगा इंसान यार। अब ये देख रहे हैं आप, ये जो रिसॉर्ट है जो बने हुए हैं ना, ये एक रिसॉर्ट है। तो ऐसे रिसॉर्ट, जैसे मैं मेन रोड से लगभग 1.5 किलोमीटर अंदर आया हूँ, तो पूरा का पूरा मतलब घाट रोड नहीं बोलूँगा, सो ऐसे वाला रोड ही है, ठीक है। वो मेरी गाड़ी खड़ी है, तो ऐसे वाला रोड ही है। तो आपको ना पूरे रिसॉर्ट नज़र आएंगे। जैसे आई डोंट नो हाउ मच इज़ द ऑक्यूपेंसी, बट आई एम श्योर देयर इज़ लॉट ऑफ पीपल कमिंग इन। पूरे रिसॉर्ट है यहाँ पे, और आई एम टेलिंग यू, ये इतनी अच्छी लग रही है ना यहाँ पे, जो क्लाइमेट हो या जो वादियाँ मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, आप देख रहे हो, ठीक है। अगर बारिश वारिश में आप देखोगे ना, मुझे लगता है मज़ा ही आ जाएगा। तो जहाँ से मैं आया था, तो वो रास्ता भी बड़ा खूबसूरत था, ठीक है। मैं पता नहीं कितनी बार रुक के आया हूँ, तो मुझे लगे ऑलमोस्ट 6 घंटे, क्योंकि खाने के लिए रुका था और बीच बीच में कुछ शॉट्स लेने के लिए रुका था, मतलब शूट करने के लिए। तो ये मेरी बाइक है वी स्टॉर्म। और भाई साहब, अगर बाइक की बात भी कर लूँ तो 5 घंटे बेझिझक, नो थकान, नथिंग, अच्छी गाड़ी है भाई, वी स्टॉर्म 250। तो ये मेरी पहली बहुत लंबी राइड थी, और इट्स वेरी कंफर्टेबल राइट, एंड मज़ा आ गया आज इस पे आके। तो यहाँ दिखाने लायक तो यही है, मतलब जो वादियाँ हैं ये सब है। तो जैसे देखिए, मेरा जो भी वीडियो बनता है ना, माई वीडियोज़ आर नॉट अबाउट द लोकेशन ओनली, इट्स अबाउट इफ़ यू वांट टू गो एस्केप फ्रॉम योर रूटीन लाइफ, राइट। सो यू गो राइडिंग, एंड देन यू डोंट राइड, आप जस्ट राइड नहीं करना है कि आपको जाके वो क्या बोलते हैं कि जहाँ पर हम पहुँचेंगे वो वाला जगह सुंदर होगा। तो आपको जाते जाते भी लोकेशन सुंदर होनी चाहिए, मतलब नज़ारे दिखनी चाहिए, तब जाके आपको मज़ा आएगा ना, राइट। ये देखा आपने, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, नज़ारे तो हैं ही, राइट। अगर आप यहाँ कहीं रुकते हो 1-2 दिन के लिए, मतलब रिलैक्स करने के लिए या कुछ, तो आई थिंक यू विल डेफिनेटली फॉल इन लव विद इट। नेचर लवर हैं आप, तो बिल्कुल नेचर आप सामने ही पाओगे अपने, सुबह उठते उठते शाम को सोते, राइट। और अगर बारिश हो गई तो माय गॉड, आई थिंक इट विल बी रियली रियली लवली, है ना। तो जिस रास्ते से मैं आया हूँ ना, तो मतलब आपको थकान महसूस ही नहीं होगा, राइट। जहाँ पर पानी दिख रहा है, कहीं झरना दिख रहा है, कहीं पे आपको लेक्स दिख रही हैं, कहीं वाटरफॉल, बैक वाटर दिख रहा है, कहीं गार्डन दिख रही है, खेत दिख रहे हैं। देखिए, तो मेरी वीडियोस लगा ज़्यादातर ये बोलती हैं कि भाई, इतनी बिजी लाइफ में अगर मैं वीकेंड पे जाऊँगा ना, कहाँ जाऊँगा, तो क्या मैं रास्ता वो चूज़ करूँ जो मुझे खूबसूरत मंजिल के पास लेके जाता है, या एडवेंचरस लेके जाता है, या ऑफ रोडिंग लेके जाता है, मतलब जो भी है, राइट। वन साइड इज़ थ्रिल, सेकेंड इज़ कीपिंग इन माइंड द एज एंड द सिचुएशन एंड द प्लेस दैट यू आर एट। मेरा गोल ना ये है कि अगर मैं 5 घंटा राइडिंग करूँ, 6 घंटा राइड करूँ, तो मेरा जो रास्ता है राइड करने का वो अच्छा हो, ताकि आपको स्ट्रेस ना फील हो, राइट। एंड आप पूरा का पूरा राइड एंजॉय करें ना, ताकि आपको ये ना लगे कि जैसे मुझे तो ना अच्छी है, मुझे बिल्कुल नफ़रत है अगर मैं कोई ऐसा वाला हाईवे, जैसे आप दिल्ली में यमुना एक्सप्रेस हाईवे, द हाईवे इज़ वेरी गुड, आई एम नॉट डिनाइंग द फैक्ट, राइट। बहुत अच्छा हाईवे, आपको ड्राइव करना है, कहीं पहुंचना है किसी काम के लिए। लेकिन यार एक टाइम के बाद ना वो पूरा इतना बोरिंग हो जाता है कि भाई, वो सिर्फ क्या बोलते हैं, वो सड़क ही सड़क दिखता है, कहीं पे पेड़ दिखती हैं, कहीं नहीं दिखती हैं, कहीं दुकान के लिए ढूंढना पड़ता है, आपको सर्विस लेन चढ़ना है, ये करना है, पर पता नहीं यार, मतलब ये देख रहे हो मेरे आगे पीछे हरियाली, बट सांस ले सकता है बंदा भाई। मतलब अगर आप कहीं पे थक वक गए ना, तो मतलब थकान तो छोड़िए आप, मतलब सांस ले सकते हो, पोल्यूशन नाम की कोई चीज़ है ही नहीं यहाँ पे। तो बस यू विल फील लाइक यू हैव डन समथिंग डिफरेंट, राइट। यू आर नॉट राइडिंग फॉर टू अचीव समथिंग, यू आर राइडिंग टू relieve all the stress that you have gone through the entire week, or refresh yourself, reboot yourself, right. So that is what my videos are all about। देखिए, लोकेशन और
उसका तो रिव्यू बहुत लोग करते हैं। तो मेरा तो सिंपल ऑब्जर्वेशन है भाई कि आप अगर राइड पे आएंगे यहाँ पे, या कभी आप केरला में हो, तो ये भी एक जगह है कुट्टी कानम, आप प्लीज़ विज़िट करना। आने के रास्ते में जैसे मैंने पोस्ट किया था, आपको दिखेंगे वाटरफॉल्स, आपको मतलब पूरे वो घाटी वाले रोड दिखेंगे। सो अब घाटी रोड्स में जितना कवर कर सकता था मैंने किया, बाकी मैंने स्किप इसलिए कर दिया क्योंकि तो मैं घाटी वाले रोड में बहुत कवर करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ना ज़्यादा हो नहीं पाता। क्योंकि क्या होता है ना, वो सामने कोई ना कोई गाड़ी होती है, या तो बस होता है या तो टेम्पो ट्रैवलर होता है, तो आप ओवरटेक नहीं कर सकते हैं बिकॉज ऑफ सो मेनी कर्व्स एंड बेंड्स। तो सामने से गाड़ी आ रही होती है, सो यू बेसिकली आई वुड से डोंट रश एंड डोंट ओवरटेक। तो इसी चक्कर में क्या हो जाता है ना सर, जब हम वो करने की कोशिश करते हैं तो सिर्फ सामने की गाड़ी आती है, बस लगेगा ऐसे कि सर मैं हो तो क्या बोलते हैं उसको, वो कंपनी की जो गाड़ी है उस कंपनी का मैं ऐड वैड बना रहा हूँ, क्योंकि वो सामने से हटेगा ही नहीं। एक एक गाड़ी को ओवरटेक करने में 15-20 मिनट लग जाते हैं, क्योंकि आपको सीधा रोड शायद ही नज़र आए, राइट। तो मेरे लिए तो अच्छा वीकेंड था। 5 घंटे लगे मुझे आने में, अब वापस मैं जाऊँगा 5 घंटे। मैं भी सजेस्ट करूँगा कि आप भी ऐसे कोई जगह चुनें, राइट। तो अगर आप प्रोफेशनल राइडर हैं, आप सिर्फ ब्लॉगिंग करते हो, तो शायद आप चूज़ करें 500-600 किलोमीटर, एंड दैट एंड ऑल इज़ गुड। बट अगर वीकेंड में कोई छोटी सी राइड करनी है, छोटी सी मतलब अगर जो मैंने अभी किया है वो भी मुझे ज़्यादा ही लगता है, किलोमीटर तो कम है लेकिन 5 घंटे 6 घंटे, और ठीक है यार। अब सैटरडे संडे का ऑफ मिला है तो सैटरडे एक दिन तो जा सकता है, तो मैं यहाँ तक आ गया। नॉर्मली मैं 1.5-2 घंटे की दूरी पे ही जाता हूँ, बट अब केरला है, नेचर है भाई, नेचर एंजॉय नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे बताओ, है ना। चलिए, अब टाइम आ गया अलविदा बोलने का। अगले लोकेशन पे जब जाएंगे तो वापस मिलेंगे। आप ये ज्ञान समझो या ये सजेशन समझो, लेकिन देखो हर किसी का अपना अपना शौक़ होता है। मेरा है या तो ट्रैवलिंग या तो राइडिंग, अच्छे अच्छे जगह देखना। अब ये शौक़ मैंने पाल रखा है, तो मैंने सोचा चलो बाकियों को भी दिखा दें कि भाई क्या होता है वीकेंड राइडिंग। अच्छा लगता है, नहीं लगता है, तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है। आप भी ट्राई करके मुझे कमेंट में बता देना आपको कैसे लगता है, और आप कौन सी जगह पे जाना पसंद करते हो वीकेंड्स पे। चलिए बाय बाय, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।